न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट केवी कामत का कहना है कि भारत में तेज गति से रिकवरी होगी। हमारे ग्रुप एडिटर राहुल जोशी से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि इकोनॉमी में शैलो यू शेप रिकवरी देखने को मिल सकती है। There is a lot of talk about this. Would you say that we can expect a V-shaped recovery of sorts? The markets are also in the last few weeks, they are on fire. We are talking about Nifty at 10,750. And if you look at the global picture, in the US in June, 4.8 million jobs had been added. In the Europe, the picture is also looking up. In India, GST collections are up. So would you say that there would be a V-shaped recovery of sorts? I think let me just preface that by saying in India also, the job situation has improved because the factories are open. And I saw CMI numbers the other day that almost all the jobs we lost in the last April-May or April period were recovered in the May-June period. Yes. So I think once we look at more hard data, I think we can take a call on that part, the jobs part of it. But on the recovery front, my initial thoughts were that this is going to be a U with a very long base, and that would not have been very good for the country. As of today, having said what I said and observing what I am, what I've observed, I think it will be a U, but with a very short base, not a very long base. And thereafter, as you go to the other side of the U, probably the U will be not a 90-degree U, but it will be almost like a V, accelerating faster. But we will know this for sure once a few more industries, talk about what is happening in their own sphere. I would be delighted if it turns out to be a shallow V, but as of now, to me, it looks like it will be a shallow U, not a long drawn-out U. And maybe next month, I could be pleasantly surprised if it ends up being some sort of a V. But as of now, a little bit of pain, and then we should be out of it. बैंकिंग के दिग्गज है केवी कामत और कामत मानते हैं कि अभी बैंकों के लिए चुनौतियां बहुत है और बिना ग्रोथ के एनपीए को भी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर राहुल जोशी के साथ बातचीत में उन्होंने बैंकिंग सेक्टर के लिए कई बड़े सुझाव भी दिए। Clearly, the banking sector was struggling under the burden of bad loans even before COVID. Do you feel that after this, that could exacerbate, that problem could become worse? Does it worry you at all? Yeah, if I look at pre-COVID, I will only amend what you said very slightly. I think the banking sector was, having a problem, which was serious. But I think the banking sector, with all the efforts, the government, the capital that was injected and so on, was coming out of the problem. It needed a little more handholding, but it was coming out of the challenges. Clearly, the answer to your question is yes, there will be a challenge. And the sectors where we will have a challenge are also known. So what is the key response? The key response, I think, are on three levels. I learned this lesson very long back in my previous stint as a development banker, not the current stint, that only way a bank can survive is by growing. You do not allow a bank to grow, the bank is going to, the problem of NPAs is going to be unmanageable. So you will have to grow your way apart from, corrections in terms of provisioning and capital injections and so on. The bank will have to grow its way out of NPAs. So critically, growth, which we talked about in the earlier part, is going to be a critical part, is going to be an important part of the banks coming out of this phase. So I think with the steps that you've taken, that growth will happen. Whether it is in the corporate India, whether it is in rural India, or whether it is in retail India, I think we need to maintain the momentum. The second is, I think at this point in time, low interest rates. Low interest rates are going to be critical for survival of banks. And I'll explain why. Take a very simple scenario. If interest rates are 12%, your NPA doubles in 6 years. It doubles in 6 years, and there is no chance at all of that institution surviving if an NPA is going to double in 6 years without massive capital injection, and that capital doesn't probably exist today. So you need to get down interest rates
so that you buy time for the banks to heal on their own. So you turn the thing around, the bank lends at 6%, you have 12 years for the NPA to double. And clearly you will have at least one, if not two economic cycles in that period, which will raise all boats, and the banks will be able to come back to health. Yes, capital injection will be required, but the order of capital injection will be significantly lower than what it is if you run a high interest rate regime. So I think banks will need to look at how they work with the government, with the regulator, to ensure that a low interest rate climate endures. Having said that, interest rates have started dropping. I would guess that interest rates need to drop even further if the banks need to have to come around without too much pain. Otherwise, they will probably come around, but extreme pain and money being provided by various stakeholders, which is going to be a challenge. That's the second point. The third point is, I think some steps were taken. A moratorium was announced by the Reserve Bank. Very welcome. I think there was also an extension of moratorium. Very welcome. And I'm more heartened when I see bankers come out and say, or some NBFCs come out and say that X% of my customers took the moratorium. That was 2 months back, but today, many of them have said that we will pay in time. Extremely good news. So I hope that continues. But having said that, if there are sectors, who genuinely have a problem, I would think that it is right time that policymakers could consider, again, no prescriptions, could consider a moratoria of a longer nature, maybe a one-time one. I heard other banking leaders talk about it, and I would stand with them to say that that's probably the need of the day, and probably the lowest cost way in which you will put the banking system back on its feet. Low interest rates, one-time moratoria, and provide them the market to grow and encourage them to grow. I think this puts back banking on its feet quickest. This is the lesson that I learned going back almost 30 years into my career or more. And I think it stands true even today. And this is something that we could consider. तो केवी कामत के साथ ये पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं आप आज रात 9 बजे CNBC आवाज पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सभी सरकारी कंपनियों से कहा कि वो इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए अपनी विस्तार योजनाओं पर खर्च करें। आज इन कंपनियों के प्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वित्त मंत्री ने बातचीत की है। बातचीत में और क्या क्या बातें निकलकर सामने आई, जानने के लिए चलते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय हमसे जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण जी, ये बताइए कि खर्च बढ़ाने के अलावा और भी बातें हुई होंगी, किस मकसद से बुलाई गई थी ये मीटिंग? देखिए, दरअसल इस पूरे बैठक का मकसद ये था कि कोरोना वायरस की वजह से, फिर लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था में जो सुस्ती छाई हुई है उसको कैसे दूर किया जाए। इसका एक तरीका ये होता है कि सरकारी कंपनियां जमकर निवेश करें, सरकारी कंपनियां ज्यादा खर्च करें। तो इसका दूसरा फायदा ये होता है कि सरकारी कंपनी खर्च करती है तो निजी कंपनियां भी आगे बढ़ के खर्च करती हैं, और जब खर्च होता है तो अर्थव्यवस्था में नई मांग पैदा होती है और फिर वो अर्थव्यवस्था पटरी पर आने लगती है। इसी फॉर्मूले के तहत ये बैठक की गई। 23 सरकारी कंपनियों के प्रमुखों के साथ ये बैठक की गई, जिसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर, कोल, माइनिंग सेक्टर समेत दूसरे सेक्टर के सरकारी कंपनियां थी। और उनसे पहले ये पूछा गया कि इस चालू कारोबारी साल में आप अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर कितना खर्च करना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य के कितने करीब है, किस क्वार्टर में कितना खर्च करेंगे। और फिर वित्त मंत्री ने यह नसीहत दी कि हर कंपनी अपने लक्ष्य के हिसाब से जरूर खर्च करें विस्तार योजनाओं पर, और ज्यादा से ज्यादा खर्च करें ताकि अर्थव्यवस्था में एक
एक फिर से जो अभी सुस्ती है वो दूर हो सके। यहाँ पे जो पूरे कंपनियों की बात करें तो 23 कंपनियों को मिला करके करीब 1,65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान है चालू कारोबारी साल में। हालांकि सबसे ज्यादा ऑयल एंड गैस सेक्टर पर करीब 95,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्लान है। तो ये इन सेक्टर की कंपनियों पर ज्यादा जोर रहेगा और मुझे लगता है नियमित तौर पर इस बैठक के बाद इस बात की निगरानी की जाएगी कि कौन सी कंपनियां कितनी खर्च करती है। हाँ, खर्च के अलावा एक और मुद्दा होता है वो है कि सरकारी खजाने को भी थोड़ा सा भरिए, तो वहां पे डिविडेंड देने की बात की जाती है सरकारी कंपनियों से, उनके पास जो कैश सरप्लस है उसका भी हिसाब मांगा जाता है। तो समझा जा रहा है बैठक में इस मुद्दे पर बातचीत हुई। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी इस अपडेट के लिए। और अब बात करते हैं बाजार की। बाजार के लिए जुलाई अब तक मजबूती का नाम रही है। लगभग लगातार पांचवें सेशन में निफ्टी हरे निशान में बंद होने में आज भी कामयाब रहा और आज निचले स्तरों से शानदार रिकवरी भी देखने को मिली है। निफ्टी बैंक भी दिन के निचले स्तरों से सुधरकर तकरीबन 2% की बढ़त लेकर बंद हुआ है। आज के कारोबार में बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, बजाज फिनसर्व, आयशर मोटर्स और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों से शानदार तेजी मिली। वहीं अदानी पोर्ट, पावर ग्रिड, ग्रासिम, बीपीसीएल और आईटीसी के शेयरों में आज गिरावट रही। और सीबीआई के बाद अब ईडी ने भी जीवीके ग्रुप पर केस दर्ज किया है। ईडी ने मुंबई हवाई अड्डे के विकास में 800 करोड़ रुपए से अधिक की हेराफेरी का मामला दर्ज किया है। इस मामले में जीवीके ग्रुप के चेयरमैन जी वेंकट कृष्ण रेड्डी, उनके बेटे जीवी संजय रेड्डी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और दूसरे 9 प्राइवेट फर्म के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में कुछ दिन पहले सीबीआई ने भी केस दर्ज किया था। इस मामले में ईडी जल्द खातों की जांच भी शुरू करेगा। देश में ब्रॉडबैंड की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यानी आईएसपीज के लिए लाइसेंस फीस खत्म करने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट इसी हफ्ते दूरसंचार विभाग के इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे सकती है। असीम मनचंदा हमसे जुड़े हुए हैं। असीम, ये बताइए कि ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन इससे कैसे बढ़ेगा और इस वक्त में सरकार इस पर विचार कर रही है, क्या कोई खास वजह है? देखिए, कोविड-19 के चलते बहुत सारे लोग जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। इसके चलते टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क के ऊपर काफ़ी बोझ जो है वो पड़ा है। सरकार चाहती है कि देश में लैंडलाइन ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन को बढ़ावा दिया जाए। अभी फिलहाल लैंडलाइन ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन मात्र 2.5 से 3% है, लेकिन सरकार इसकी संख्या जो है काफ़ी बढ़ाना चाहती है ताकि टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क के ऊपर बोझ जो है वो कम हो सके। तो इसके लिए सरकार जो है आईएसपीज के लाइसेंस फीस में कटौती करने की तैयारी जो है वो कर रही है। 2015 में ट्राई ने इसको लेकर के अपनी सिफारिशें जो है वो दी थी। ट्राई का कहना था कि टेलीकॉम कंपनी और आईएसपी जो है करीबन 8% के आसपास ब्रॉडबैंड के ऊपर लाइसेंस फीस जो है वो देते हैं। अगर इसको घटा करके 0 कर दिया जाए तो टेलीकॉम कंपनियों के लिए इंसेंटिव होगा और ज्यादा से ज्यादा घरों में वो ब्रॉडबैंड जो है वो पहुंचा पाएंगे। जो दूरसंचार विभाग है उसने इस सिफारिशों को स्वीकार जो है वो कर लिया है। जो डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन है उसने भी इसको हरी झंडी जो है वो दे दिया है। तो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि इसके लिए कैबिनेट नोट जो है वो भी तैयार हो गया और 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो कैबिनेट है इन सिफारिशों को हरी झंडी जो है वो दे सकती है। तो टेलीकॉम कंपनियां करीबन 900 करोड़ रुपए के आसपास जो आईएसपीज हैं वो ये सर्विस लाइसेंस फीस जो है वो सरकार को देते हैं। तो अगर ये लाइसेंस फीस में कटौती होता है तो उनको फायदा तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ये कंज्यूमर को भी पास ऑन होगा। तो आने वाले दिनों में कंज्यूमर के लिए जो लैंडलाइन ब्रॉडबैंड है वो काफी अफोर्डेबल हो जाएगा, उनके लिए काफी ये सस्ता हो जाएगा और ये आसानी से इसका इस्तेमाल जो कर पाएंगे। शुक्रिया असीम। और म्यूचुअल फंड जब चाहे आप घर बैठे ट्रैक करें और चाहे तो स्विच करें, इसका नया ऑप्शन आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। लगातार 5वें दिन 20,000 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए हैं। हालांकि इस दौरान रिकवरी रेट भी सुधरी है और रिकवर होने वाले लोगों की संख्या 4,39,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट 61.13% पर पहुंच गई है। कोरोना की वजह से कांवड़ यात्रा को भी बैन कर दिया गया है। हरिद्वार प्रशासन ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। यूपी सरकार ने मुजफ्फरनगर और शामली जिले की सीमा को सील भी कर दिया है।
और गुजरात के सौराष्ट्र के कई इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। द्वारका, राजकोट, जामनगर, कच्छ में भी काफ़ी बारिश हुई है और अब कहीं कहीं बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं तो कहीं बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक और कुछ घंटों तक बारिश हो सकती है। ऐसे में समस्या बड़ी हो सकती है। अभी कई इलाकों में डैम में पानी लबालब भर चुका है। नदियों के कैचमेंट एरिया में पानी भरा हुआ है। एनडीआरएफ हाई अलर्ट पर है। नदियों के आसपास इलाकों में कुछ फंसे हुए लोगों और जानवरों को एनडीआरएफ ने रेस्क्यू भी किया है। तो आने वाले जो कुछ घंटे हैं वो गुजरात के लिए काफ़ी अहम है। वैसे अभी वहाँ जान माल की कोई किसी बड़ी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन हालात पर नज़र बनाए रखनी होगी। और मानसून के दस्तक देते ही राजधानी दिल्ली में सब्जियां महंगी हो गई हैं। मुंबई में भी सब्जियां महंगी बिक रही हैं। गोभी, गाजर, पालक समेत ज़्यादातर सब्जियों के दाम 30 से 50% तक बढ़े हैं। टमाटर के भाव में 2 गुना इजाफा देखने को मिल रहा है। दीपाली नंदा दिल्ली की सब्जी मंडी का हाल बता रही हैं। देखते हैं रिपोर्ट। दिल्ली में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। खास तौर पर टमाटर, आलू, प्याज जो कि रोजाना इस्तेमाल में आने वाली सब्जियां हैं, उनके दाम 25 से 30% तक बढ़ गए हैं। इस वक्त मैं एक रिटेल मंडी में आई हूँ। यहाँ पर किस तरह का माहौल है, लोग क्या बिक्री कर रहे हैं, खरीदारी हो रही है, इस सब का जायजा मैं लूंगी। ये जो टमाटर है सर, ये इसका दाम पहले कितना था? जून के पहले 1-2 हफ्ते में इसका था 30 रुपये, 30, 25, 30 और आज 60 है। 60 रुपये, यानी कि दुगना हो गया है। 30 रुपये इसकी कीमत थी और अब ये 60 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहा है। कुछ और हमारे साथ कंज्यूमर्स भी हैं जो यहाँ पर सब्जी खरीदने के लिए आए हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, सब्जी महंगी हो गई है काफ़ी? हाँ, बहुत महंगी हो गई है। डबल रेट हो गई है। 70 रुपये तो प्याज आलू बता रहे, ये टमाटर 70। अगर प्याज की बात करें तो कितने का कह रहे हैं? प्याज ठीक है, 50 रुपये के 2.5 किलो। अच्छा, और इसके अलावा आलू? आलू 40, वो भी 30 था पहले। हाँ, पहले 25 से 30 थे, अब हाँ, अब 40 हो गए। तो आपने यहाँ पर देखा कि जितनी भी सब्जियां हैं उनके दाम दुगने हो गए हैं। हम एक और जो सब्जी विक्रेता है उनसे जानेंगे। सर, गोभी कितनी महंगी हो गई है? इस टाइम 60 रुपये किलो बिक रही है। पहले कितनी थी? पहले 40 रुपये थी। और कौन कौन सी सब्जियां हैं जिनके दाम बढ़ गए और क्या वजह आप मान रहे हैं? बरसात की वजह से पीछे कम माल आता है, इसलिए रेट बढ़ जाते हैं। हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ। कौन कौन सी सब्जी अगर आप बताएं? ये टिंडा ले लो, खीरा लो, बैंगन लो, सबका रेट बढ़ा हुआ। टमाटर का रेट बढ़ा हुआ है। आलू प्याज का कुछ फर्क पड़ रहा है पहले से। तो क्या लोग अब अभी खरीद रहे हैं पहले, या फिर कुछ कमी आई है? खरीद रहे हैं लोग खरीद रहे हैं। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से ज़्यादातर जितनी भी सब्जियां हैं उनके दाम 25 से 30% तक बढ़ गए हैं। और जो बड़ी वजह इन्होंने बताई कि बारिश की वजह से फसलों को नुकसान हुआ है, जिसके चलते आवक कम हुई है और अब उसका असर ये देखने को मिल रहा है कि सब्जियां जो आपकी थाली तक पहुंच रही हैं वो काफ़ी महंगी हो गई हैं। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो ये था दिल्ली की सब्जी मंडी का हाल। और अब आपको लेकर चलते हैं मुंबई, और वहां आपको ये भी पता चलेगा कि थोक और खुदरा में किस तरीके का अंतर है। सब्जी मंडी मुंबई का जायजा लिया हमारी संवाददाता सिल्की सिंह ने। तो देश के दूसरे शहरों की तरह यहाँ मुंबई में भी सब्जियों के दाम कई गुना तक बढ़ गए हैं। यहाँ एपीएमसी मार्केट, जो कि होलसेल मार्केट माना जाता है सबसे बड़ा, वहाँ से सब्जियाँ आती हैं रिटेल मार्केट में और वहाँ से आपको हम प्राइस कंपैरिजन बताते हैं। तो जहाँ एपीएमसी मार्केट में टमाटर जो है 18 से 22 रुपये किलो मिल रहा है, यहाँ रिटेल में इसका दाम 50 से 60 रुपये किलो है। वहीं शिमला मिर्ची की बात करें तो ये शिमला मिर्च एपीएमसी मार्केट में 30 से 32 रुपये किलो में है और यहाँ रिटेल में 80 रुपये किलो में ये बिक रहा है। गाजर की बात करें तो गाजर जो एपीएमसी मार्केट में 18 से 20 रुपये किलो है, वहीं यहाँ 60 रुपये किलो में, और भिंडी जो कि 14 से 16 रुपये किलो एपीएमसी मार्केट में मिल रहा है, वो यहाँ रिटेल में 40 रुपये किलो पे मिल रहा है। इसी तरह तमाम हरी सब्जियों के दाम भी कई गुना तक बढ़ गए हैं और इसके पीछे कारण है आवक की कमी और फ्यूल के बढ़े दाम। तो अब कोरोना काल में लोगों को काफ़ी मुश्किल आ रही है सब्जियों के को खरीदने में भी, क्योंकि इसके दाम काफ़ी बढ़ गए हैं। सिल्की सिंह, मुंबई। अब आप घर बैठे म्यूचुअल फंड रिटर्न्स को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर दूसरे फंड में स्विच भी कर सकते हैं, बस एक क्लिक के जरिए। ये कैसे होगा, देखिए सिल्की सिंह की इस रिपोर्ट में।
अगर आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस से परेशान हैं और किसी दूसरे फंड में स्विच करना चाहते हैं, तो स्मार्ट स्विच वो प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए ऐसा करना आसान बना देगा। हमने पाया कि काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमको इतना लॉस है मेरा पोर्टफोलियो, हमको क्या करना चाहिए। तो हमने फिर उसके बाद एनालाइज करके पाया कि ऐसे करीब 11 लाख करोड़ का AUM ऐसा है जो कि रैंक MF के हिसाब से 1, 2 या 3 स्टार रेटेड हैं, जो कि अच्छे क्वालिटी के स्कीम्स नहीं हैं। म्यूचुअल फंड रैंकिंग एजेंसी रैंक MF ने इसके लिए अपनी वेबसाइट पर स्मार्ट स्विच फीचर शुरू किया है। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको बस रैंक MF की वेबसाइट पर जाकर इवैल्यूएट पोर्टफोलियो पर क्लिक करना है और अपने लेटेस्ट ECAS स्टेटमेंट को अपलोड करना है। ये टूल पहले आपको आपके पोर्टफोलियो का स्कोर बताएगा और फिर आपको स्विच करने के विकल्प भी बताएगा। अगर सही तरीके से सही फंड में अगर आपने नहीं लगाया तो चांसेस जो हैं, जो आपका पोर्टफोलियो रिटर्न मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इसको ध्यान देते हुए हम लोगों ने ये प्रोडक्ट को लॉन्च किया, जहाँ पर कस्टमर अपने पैसे अपने पोर्टफोलियो को सेव करके फिर उसके बाद वो उसको इवेल्युएट करके उसके बाद फिर वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं कि उनको स्विच करना है या नहीं करना है, जिसके कारण उनका जो पोर्टफोलियो का जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा हो जाए। स्मार्ट स्विच की इनबिल्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम रैंक MF के रिसर्च प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इस टूल की खासियत ये है कि ये फंड्स के फंडामेंटल्स और मार्केट डेटा पॉइंट्स को स्कैन करता है, जिससे आपके लिए स्विचिंग के बेहतर विकल्प की जानकारी आसान हो सकती है। कोरोना से बचाव के लिए जिस तरह से सैनिटाइजर आपकी मदद करता है, स्मार्ट स्विच भी आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के लिए एक सैनिटाइजर है जो आपको फाइनेंशियल वायरस से बचाता है। सिल्की सिंह, मुंबई। इस संकट के वक्त तेज और सटीक जानकारी बहुत जरूरी है। मनी कंट्रोल प्रो आपका वो भरोसेमंद साथी है जो आपको आगे रखता है। मार्केट डाटा के साथ साथ यहाँ आपको निवेश के जबरदस्त आइडियाज भी मिलते हैं, वो भी रोजाना महज ₹1 में। कूपन कोड याद रखिए PRO365, तुरंत सब्सक्राइब करिए। नियम और शर्तें लागू।